Okay. So evening time I will give that at what time you need to appear in the online test. 10 marks का टेस्ट होगा. You should try once only. सर जियो के चैप्टर का? Yes, सर जो आपने अभी रिवाइज करवाया. Yes, जो अभी रिवीजन में चल रहा है. So ये जो चैप्टर है. ओके सर. इसका कितने बजे होगा? वो that time I will tell, don't worry. वो मैं ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, so that all the students should come to know there is a test at so and so time. Well, so yesterday we have discussed that why 82 degree 30 minutes east, that was selected as a standard meridian, and then implications also we have discussed. Implication, that is latitudinal implications. क्या होता है latitudinal implication? That what is the influence of latitudes on our country's location. इसमें हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे. एक क्या था कि that latitude, that is Tropic of Cancer, is dividing our country into two equal parts. नीचे वाला part that is tropical region and upper part is subtropical region. So in the both the regions things are changed. चाहे फिर वो climate change हो या crops हो या फिर so many other things like food habits and what not. So these are the changes because of this latitude. Then second one is the time difference between day and time. Time difference between day and time, that is felt very less near equator, or you can say at Kanyakumari, and it is more at that you can say Srinagar. जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो डे नाइट का डिफरेंस है ये ज्यादा फील किया जाता है बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड्स, बिकॉज देयर लैटिट्यूड इज डिफरेंट एंड कन्याकुमारी लैटिट्यूड इज डिफरेंट. So it means there is a implication of latitudes on India's location. Then comes longitudinal implication. Longitudinal implication क्या होते हैं? What we have seen in that discussion, there is a less distance between eastern part and western part. अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के बीच में जो हमने डिस्टेंस देखा था that was 2933 किलोमीटर, whereas from you can say जम्मू कश्मीर to कन्याकुमारी that distance is 3214 किलोमीटर. तो ये जो डिफरेंस है that is because of that is longitudinal extent, and there is a 30 degree difference. There is a 30 degree difference between sunrise time of Arunachal Pradesh and गुजरात. तो ये भी क्या है लॉन्गिट्यूडनल इम्प्लीकेशंस हैं. तो इसके लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल इम्प्लीकेशंस दैट आल्सो यू शुड नो, जो कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. देन नाउ कम्स इंडिया एंड द वर्ल्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड द वर्ल्ड. हमारा जो इंडिया है उसकी लोकेशन है, हाउ दैट लोकेशन इज having beneficial or some sort of beneficially in that case our country's location at the head of Indian Ocean. हमारे कंट्री की लोकेशन क्या है? It is located at the head of the Indian Ocean and in the central part of South Asia. हमारा जो कंट्री है वो हम दोनों दैट इज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज, ये भी है, एंड इन द सदर्न एक्सटेंट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. जो एशिया का कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट है उसके साउथ के एक्सटेंशन के ऊपर लोकेटेड है ये, बिकॉज उसके नीचे इंडियन ओशन है. सो दैट इज द सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ इन एशियन कॉन्टिनेंट एंड दिस इज लोकेटेड एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ East and West Asian countries, as if it is located on the center of highway Trans-Indian Ocean route. Trans-Indian Ocean route क्या होता है कि इंडियन ओशन के रूट के ऊपर ये बीच में लोकेटेड है. ईस्ट एशियन कंट्रीज राइट साइड में है एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज हमारे लेफ्ट साइड में है.
सो इसका बेनिफिट क्या है? हमारी कंट्री की जो लोकेशन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस लोकेशन फॉर इंडिया? सर सो बेनिफिट ये है कि यहाँ पर मतलब कि कोई वो होता है ना, वो किसी भी चीज का एक्सपोर्ट होता है तो यहाँ पर मतलब कि रुक जाती है शिप्स वगैरह. Okay, okay. That I will tell. Yeah, is what is the benefit of this? That suppose East Asian countries, they want to go to West Asian country. They will come through India because it is on the central location. Yes, central location of these both the side, East Asian countries and West Asian countries. इनके center में है. So naturally वेस्ट एशियन कंट्रीज अगर ईस्ट एशियन कंट्रीज में आएंगे तो इंडिया से होके जाएंगे. देन इफ द ईस्ट एशियन कंट्रीज दे आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, देन अगेन दे हैव टू गो टू इंडिया. सो फॉर ट्रेडिंग पर्पज, फॉर बिजनेस पर्पज, दिस बेनिफिट वी आर हैविंग दैट any country is moving to any other country, that country has to go to India. और इंडिया में वो बिजनेस करेगा, नो डाउट, क्योंकि बिजनेस जो होता है तो वो पूरे रूट पे होता है, न कि एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में होता है. सो दैट बेनिफिट इंडिया इज हैविंग बिकॉज एनी कंट्री और इवन वी कैन अप्रोच टू एनी ऑफ द कंट्रीज, दैट इज ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज. देन दूसरा पॉइंट क्या है कि इंडिया इज हैविंग ए लार्ज दैट कोस्टल लाइन. जो हमारे कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा कोस्टल लाइन है, दैट ऑल्सो बेनिफिट वी आर हैविंग. इंडियन ओशन का जो नाम है वो भी इसीलिए रखा गया है बिकॉज इंडियन ओशन इज हैविंग मोर कोस्टल लाइन विद इंडिया. इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो सबसे ज्यादा इंडियन ओशन में लगती है, इसलिए इस ओशन का नाम इंडियन ओशन भी रखा गया है. दिस इज द रीजन व्हाई दैट इंडियन ओशन इज called so, that is Indian Ocean, because the maximum coastal line that is touching to India. Okay, then see, waterways or seaways, that is the cheapest mode of transportation. जो पानी वाला रास्ता है वो सबसे ज्यादा सस्ता माना जाता है बिकॉज इसमें कोई खर्चा नहीं होता है. क्यों खर्चा नहीं होता? कोई मीन्स ज्यादा खर्चा नहीं होता है, नए रोड बनते हैं, और रोड अगर होते हैं तो उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर फ्यूल भी ज्यादा लगता है. सो जो वाटरवेज है दैट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ दैट ट्रांसपोर्टेशन. सो इंडिया इज हैविंग दैट बेनिफिट बिकॉज इट्स इंडिया इज हैविंग लार्ज कोस्टल लाइन, और उस कोस्टल लाइन पे मेनी शिप्स दैट सी पोर्ट्स आर देयर. बहुत सी सी पोर्ट्स हैं एंड देन शिप्स कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम दीज टाइप ऑफ सी पोर्ट्स फॉर ट्रेडिंग पर्पज. तो ये सर मेन जो 2 सी पोर्ट्स हैं उनका नाम बताना एक बार वापस. सो सी पोर्ट्स आर many or you can say these are quite important. गुजरात में कांडला पोर्ट है, देन महाराष्ट्र, इसमें महाराष्ट्र में मुंबई एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, गोवा में मरमागांव पोर्ट है, कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट है, देन केरला के अंदर त्रिवनंतपुरम एंड कोची पोर्ट है, देन इसमें तमिलनाडु में तुतिकोरिन एंड चेन्नई पोर्ट है, देन आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, उड़ीसा में पारादीप है, देन अपने वेस्ट बंगाल में हल्दिया एंड कोलकाता. दीज आर द मेजर पोर्ट ऑफ आवर कंट्री. सो ये जो पोर्ट्स होते हैं, दीज आर द पोर्ट्स which these ports can be used for transportation purpose or trading in India. इसलिए ये जो कोस्टल लाइन है ये भी इंडिया की लोकेशन का बहुत बड़ा फायदा है और ट्रेडिंग पर्पज. इसके अलावा we know that if we want to approach to European countries and even African countries, then we have to move through the long way. वो जो हमारा पुराना रूट जो था that was through you can say Indian Ocean and then beneath or under the South African route of Cape Hope. जो एक केप टाउन जो है उसके नीचे से वहां से हम जाते थे एंड देन वी वर जस्ट मूविंग टू नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज एंड इवन अफ्रीकन कंट्री. ये जो इन कंट्रीज को हम अप्रोच करते थे, देन वी वर फॉलोइंग दैट लॉन्ग रूट. बट
after the introduction of Suez Canal, SUEZ, Suez Canal एक बनी थी in 1869. वो किस किस के बीच में बनी थी? Between Red Sea and Mediterranean Sea in the Egypt country. एक इजिप्ट कंट्री है, वो वहाँ उसमें से एक स्विस कैनाल निकाली गई थी in 1869. That has reduced 7,000 kilometer to approach यूरोपियन कंट्री. पहले हम कहाँ से नीचे से जाते थे? अफ्रीका के नीचे से. और ये जो रेड सी में से, दैट यू कैन सी इन दैट मैप, हमारे 3 नंबर उसमें पेज पे ये मैप दे रखा है अबाउट द सुएज कैनाल. तो इसमें क्या होता है? रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी दैट इज कनेक्टेड बाय दिस सुएज कैनाल दैट वाज इन इजिप्ट कंट्री. तो ये जो सुएज कैनाल थी, that has reduced 7,000 kilometer all the way to approach African and European country. So ये भी इंडिया का एक बहुत बड़ा फायदा है अपनी लोकेशन का, because India is having less distance to approach Red Sea rather than to go in Indian Ocean to Atlantic Ocean. So ये जो पॉइंट है, ये हम मान सकते हैं कि इंडिया की लोकेशंस के पॉइंट होते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है वो एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन, एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड इवन एट द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. ये जो ट्रांस इंडियन ओशन के जो रूट पे है, उसका ये फायदा है कि बिजनेस बहुत अच्छा होता है, चाहे फिर वो लैंड रूट का हो या फिर इवन सी रूट का हो. एंड देन सुएज कैनाल, इंट्रोडक्शन ऑफ सुएज कैनाल, दैट वाज आल्सो given the benefit to India. So now comes India, that was having the contact with the land route as well as that sea route since ancient period. पुराने टाइम से भी हम अगर देखें तो इंडिया का जो बिजनेस होता था, that was through land route and even through sea route. So let it be any sort of things, चाहे फिर वो बिजनेस हो या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर हो, that was done by land route and even by sea route. उसमें क्या क्या ट्रांसफर होता था? That was the exchange of ideas, commodities. Commodities means whatever the things were in the business. चाहे फिर वो spices हो, चाहे फिर वो अपने textile हो, whatever the things that were transported from one place to another place, that was through land route as well as through sea route. उसके अलावा आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, रामायण, ये जो एपिक्स जो थे, ये भी सारी चीजें, इनके आइडियाज जो थे, ये भी लैंड रूट एंड सी रूट से ही ट्रांसफर किए गए थे इन डिफरेंट कंट्री. देन इसके अलावा अगर हम देखें तो डेसिमल सिस्टम जो इंडिया ने ही पूरे वर्ल्ड को दिया था, दैट वाज आल्सो to this land and sea route. उसके अलावा अगर हम देखें तो every trading items, जो हमारा जो ट्रेड का आइटम था, let it be मसलिन क्या होता है कि बहुत बारीक कपड़ा होता था जो बांग्लादेश में बनता था, बहुत बारीक कपड़ा होता है, that was very famous in the world. And even स्पाइसेस जो हमारे इंडिया के बहुत फेमस है पुराने टाइम से भी, एंड नाउअडेज आल्सो वी कैन सी. सो दीस थिंग्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एयर, दैट यू कैन से लैंड एंड सी रूट. देन बाकी जो कल्चर्स जो था, चाहे फिर वो घर बनाने का आर्किटेक्चरल जो सिस्टम था, वो भी सी रूट से एक जगह से दूसरी जगह जाता था. देन इंडिया इज हैविंग सम नेबरिंग कंट्रीज. अगर हम इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो इंडिया इज हैविंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. सो अभी अगर हम देखें तो इंडिया स्टार्टिंग में जैसे जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटाया था, द 2 that union territories were made, तो उस टाइम पे 9 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन अभी दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों जो यूनियन टेरिटरीज है, इनको मिला दिया गया है, इनको एक बना दिया गया है. सो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, नॉट 9. ये ध्यान रखना, 8 यूनियन टेरिटरीज बनी है. चेंज हो गया अब. यस, अभी दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, ये इन दोनों को
मर्ज कर दिया गया, एक बना दिया गया है. ओके, सो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी. So India is having that you can say many neighboring countries. ये जो neighboring countries है that we can see Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, then Myanmar, then Sri Lanka, and that is Maldives. So these are the different neighboring countries of India. So in these, except Sri Lanka and Maldives, because Maldives is far away, that is located in Indian Ocean, far away from even India, but still it is a southernmost or southern neighboring country, neighboring island country we can say. Sri Lanka and Maldives are neighboring island countries of India. So Maldives तो काफी दूर है, but if we talk about Sri Lanka is looking like as if it is touching the land boundary with India, but practically it is not touching with any land boundary with India. If you remember in रामायणा के अंदर जब ये वानर सेना जब श्रीलंका जा रही थी रावण के ऊपर अटैक करने के लिए, दैट टाइम जहां पर जो पत्थर पे राम लिख के इन्होंने जो लोग थे इन्होंने उनको एक सेतु बनाया था, राम सेतु जो बनाया था, दैट इज एट दैट प्लेस बिकॉज इट इज नॉट टचिंग द लैंड बाउंड्री विद श्रीलंका. इसलिए ये जो लैंड सर जो ये मैप में जो ये टच हो रहा है, इसको सर रूट को इसको नाम दिया है ना, क्या दिया है इसका नाम? यस दैट आई विल टेल. ये इसमें ये दिखने में लगता है कि दैट श्रीलंका इज टचिंग विद द लैंड बाउंड्री, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट टचिंग. why it is not touching? Because there is a passage of water in between India and Sri Lanka, so that is known as Pak Strait and Gulf of Mannar. ये गल्फ नीचे की तरफ है उसके, और जो एक पैसेज है, जो पैसेज दोनों श्रीलंका एंड इंडिया को सेपरेट करता है, दैट इज स्ट्रेट, STRAIT, नोट वो सीधा वाला स्ट्रेट STRAGHT, जो STRGHT जो है वो स्ट्रेट नहीं है, ये है STRAIT. स्ट्रेट क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच सेपरेट टू लैंड बाउंड्री, और वी कैन से विच ज्वाइन टू लैंड बाउंड्री. या फिर ये दो वाटर बॉडीज को भी ज्वाइन करता है, इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच सेपरेट टू लैंड बाउंड्री. तो ये है पाक स्ट्रेट, PALK STRAIT. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें पूछेंगे कि विच सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, सो दैट वी कैन राइट Pak Strait. Then yes sir, India की बात करें तो इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर टू टाइप ऑफ स्टेट्स. इसमें एक प्रिंसली स्टेट होते थे, एक प्रोविंस होते थे. प्रोविंसेस को हम जो आज स्टेट बोलते हैं वो प्रोविंसेस होते थे पुराने टाइम के. और प्रिंसली स्टेट दीज वर रूल्ड बाय सम यू कैन से नवाब्स एंड किंग वगैरह होते थे, वो उनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था. देवर नो डाउट देवर अंडर ब्रिटिश रूल, लेकिन जो बाकी जो प्रोविंसेस होते थे देवर डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स. तो ये जो इसकी कहानी थी बिफोर इंडिपेंडेंस. देन इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं कि इंडिया की जो साइज एंड लोकेशन का जो पार्ट है दैट इज ऑलमोस्ट डिवाइड. और ये जो चैप्टर है इसका मैं टेस्ट आज किस टाइम लेऊंगा? 5:30. मैं बता देता हूँ 5:30. आई विल जस्ट गिव दिस इंफॉर्मेशन ऑन ग्रुप ऑल्सो, सो बी रेडी एट 5:30. दिस इज ऑफ 10 मिनट्स ओनली. सिर्फ एक बार अटेंड करना है, दूसरी बार किसने अटेंड किया तो कल उसकी क्लास ले लूंगा मैं, और उसका वो क्वेश्चन पेपर वैलिड भी नहीं होगा. वंस ओनली यू शुड राइट योर नेम्स एंड पर्टिकुलर्स on that question paper, जो कि पहले भी कई बार दिया है. ऑनलाइन टेस्ट जो हुआ था, in the same manner I will conduct today also. Okay, next is our physical feature of India. Means India की जो physical features हैं that we will see in detail. Physical features of India. अभी हमने पढ़ा था कि that political जो features हैं that is 28 states and 8 union territories. Or physical features, what physical features we are seeing in India? So roughly if we will say
the mountain, Himalayan mountain, the northern plain, then the Great Indian Desert, then peninsular plateau, the coastal plains, then group of islands. So these are the different physical features, and how these physical features these are created. So these physical features are created because of tectonics movement. The whole the world, the complete world or the globe is you can say having different type of land mass which are known as continents, and these are made because of tectonics movements. ये जो continents and even oceans जो बने हैं, ये हमारी जो tectonics plates होती हैं उनकी movement से बना है. So there are 7 major tectonic plates that you should know by name. इन tectonic plates का नाम क्या क्या है? North American plate, South American plate, then African plate, then Pacific plate, Euro-Asian plate, Indo-Australian plate, and Antarctic plate. The plate. So these are the 7 major tectonic plates. So these plates are keep moving every time. So in this way, there is a earth movement created because of this tectonic movement, and because of these earth movements only, these formation what we are going to discuss in this chapter. So in this first, we can say these are the some boundaries, or you can say some movements of plates. These are resulting into some sort of activities, and these activities are holding activities, then faulting activities, and volcanic activities. These are the 3 main activities created because of टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स. जो टेक्टोनिक्स या अर्थ मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स की वजह से ये जो एक्टिविटीज है, 3 एक्टिविटीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फोल्डिंग, दैट मीन्स 2 प्लेट्स अगर एक ही साइड में मूव करती हैं, 2 प्लेट्स का जो फोर्स है दैट इज पुटिंग टुवर्ड्स 1 पॉइंट, वो उसकी वजह से फोल्डिंग एक्शन दैट इज टेकिंग, वो दैट इज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, उसमें फोल्डिंग एक्शन होता है और उसमें फोल्ड माउंटेन बनते हैं लाइक हिमालयन माउंटेन. जब 2 ही टाइप की बाउंड्री, the 2 plates are moving towards 1 point or in the same direction, we can say that in between 2 plates whatever it is coming, that is being folded. वो fold हो जाता है because of pressure. और यही हमारी जो हिमालयन माउंटेन की जो फॉर्मेशन है, that is because of this convergent boundary or folding action. Then faulting क्या होता है? That 2 plates are moving apart from each other in different direction. पहला क्या था? convergent boundary में in the same direction, and in the divergent boundary क्या होता है? The movement that is in opposite direction. तो opposite direction में क्या होता है? faults are created. फॉल्ट बनते हैं तो वैलीज आर क्रिएटेड, डिप्रेशन बन जाता है. तो इन दिस वे दैट इज फोल्डिंग इज टेकिंग प्लेस. दूसरी जो एक्टिविटी जो हमने डिस्कस की थी अदर देन फोल्डिंग, तो ये होती है बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री. देन तीसरी जो बाउंड्री बनती है दैट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कैसे बनती है? दैट 2 प्लेट्स आर मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. इनका जो मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट, वो जो दोनों बाउंड्री जो होती हैं वो एक ऊपर की तरफ चली जाती है, दूसरी नीचे की तरफ आ जाती है. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से ब्लॉक माउंटेन्स आर बीइंग क्रिएटेड. इससे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं. वेल, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं तीनों एक्टिविटीज, दैट इज फोल्डिंग, faulting एंड वोल्केनिक एक्टिविटी. एंड दीज एक्टिविटीज आर बीइंग क्रिएटेड बाय कन्वर्जेंट बाउंड्री, divergent boundaries and transform boundaries. Okay, then comes because of these movements, one activity we will see how the Himalayan mountains that was created. Himalayan mountains कैसे बने थे? That is very important. कि that oldest land mass in the world, that is Gondwana land mass. सबसे जो पुराना लैंड मास है दैट इज
Gondwana landmass, and India is the part of this Gondwana landmass only. इसके और भी बहुत से parts हैं that we can say India, Australia, South Africa, South America, Antarctica. These are the part of Gondwana landmass. तो Gondwana landmass से no doubt different you can say parts that were separated. Also Indo-Australian plate. That Indo-Australian plate, this is the part of Gondwana landmass, which is the oldest landmass of the world. Then after that from Indo-Australian plate, Indian plate, that was again detached, separated from Australian plate, and it started moving towards Euro-Asian plate, towards north side. ये स्टार्टिंग में गोंडवाना लैंड मास से डिटैच होके दैट मूव टुवर्ड्स यू कैन से राइट साइड, ईस्टर्न साइड में ये मूव करने लगी. देन इन बिटवीन बाद में और क्या हुआ, अगेन इंडियन प्लेट दैट वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंड दैट इंडियन प्लेट मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स यूरो एशियन प्लेट. तो यूरो एशियन प्लेट दैट इज मोस्ट पावरफुल प्लेट एंड इवन ओल्डेस्ट प्लेट ऑल्सो. जब उस प्लेट पे ये कोलिजन हुआ, ये उससे जाके टकराई, कोलाइड किया, तो ये जो था ये कन्वर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनी थी. इंडियन जो प्लेट थी दैट कोलाइड विद दैट यूरो एशियन प्लेट. तो यूरो एशियन प्लेट से जब टकराई तो इन बिटवीन व्हाट वी आर सीइंग हिमालयन माउंटेन. Once upon a time there was a Tethys Sea. Tethys नाम का एक sea था that was shallow. Shallow means वो कम गहरा था, and that got filled by sediments in the geocycline period. It takes lot of years, many lakhs of years it takes to fill that Tethys Sea. जब उसमें वो sediments एक के ऊपर एक लेयर बनाते गए, so many type of sedimentary rocks formed in Tethys Sea. वो Tethys Sea जो था वो फुल भर गया था और उसमें बहुत सी सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई थी. एंड ड्यूरिंग दैट कन्वर्जेंट मूवमेंट बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरो एशियन प्लेट, उनके बीच में जब कोलिजन हुआ था, दैट टाइम दैट होल्डिंग एक्टिविटीज क्रिएटेड इन द Tethys Sea, जहाँ पर बहुत सी सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई थी. एंड these sedimentary rocks were folded and converted into Himalayan mountains. So this is the young fold mountain created between the Euro-Asian plate and Indian plate with the convergent boundary and in the folding action. So this is the story how the Himalayan mountains that are formed. Okay. Then अगर हमारे बाकी का पार्ट देखें तो पेनिनसुलर पार्ट और पेनिनसुलर प्लेटू इज द ओल्डेस्ट लैंड मास इन इंडिया. गोंडवाना लैंड मास दैट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास इन द वर्ल्ड, whereas peninsular plateau that is the oldest land mass in India, and that is the stable land mass also. बाकी जो पार्ट हैं हमारे, these are keep changing, that it be Himalayan mountain. It is believed that Himalayan mountain that is having or that is in increasing order. इसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है, let it be in माइक्रो मिलीमीटर, बट ये इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती रहती है. So ये the Himalayan mountain that is the young old mountain in the world. तो ये इसका पार्ट है कि कैसे हमारा जो फीचर है, फिजिकल फीचर that got created in India. तो ये जो पार्ट है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. दैट इज मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन और व्हाट आर द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ और मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर. एज आई डिस्कस्ड, दीज आर द 6 फिजिकल फीचर्स: हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, peninsular plateau, great Indian desert, coastal plains and islands, group of islands. So that we will see in the next section. So don't go anywhere. एक तो कोई भाग गया है, जो 10 इसमें थे या 11 थे,
So now I am sending another link. You should join without fail. Okay, by the time you can leave the meeting. So I was discussing about that physical division or physical features of our country. इसमें पहला है that is Himalayan mountain. So what are the features? इसकी जो features हैं that you should remember in points. ये किस किस एरिया में लोकेटेड है, किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, इसमें इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, एंड इट्स पार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट. So these are the very important points. इस हिमालयन माउंटेन में बड़ा important part है ये, and many questions that can be covered out of this part. So we can say that Himalayan mountain geologically these are the young and structurally it is old mountains. ये geologically की बात करें तो these are the young old mountains. इसका मतलब क्या है? Young old means कि सबसे लेटेस्ट माउंटेन है, इसके बाद से कोई माउंटेन वर्ल्ड में नहीं बना है. ओके, तो दीज आर द यंग ओल्ड माउंटेन्स. और ये ओल्ड जो फोल्डिंग एक्टिविटीज हुई थी, बिकॉज ऑफ दैट एक्टिविटी दीज माउंटेन्स आर बीइंग क्रिएटेड. सो मेनी टाइप ऑफ ओल्ड माउंटेन्स आर देयर. इसमें यंग ओल्ड माउंटेन जो है दैट इज हिमालयन माउंटेन. These are covering the Himalayan mountains are covering the direction that is north, northwest and northeast. ये जो हिमालयन माउंटेन है ये हमारे कंट्री की नॉर्थ वेस्ट की थोड़ा सा वेस्ट साइड में भी है, एंड इवन नॉर्थ ईस्टर्न. बिल्कुल जो म्यांमार जो कंट्री है उसकी बाउंड्री जो है दैट इन दैट बाउंड्री आल्सो इंडियन दैट और हिमालयन माउंटेन दैट इज हैविंग इट्स बाउंड्री. So these mountain ranges that run in west to east direction from Indus to Brahmaputra. ये इंडस रिवर से और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वहां तक ये फैला हुआ है. फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हिमालयन माउंटेन दैट इज हैविंग 3 parallel ranges, and in these parallel ranges we can say that Himalayan mountain is having loftiest type of peaks. सबसे ज्यादा ऊंची जो peaks हैं वो हिमालयन माउंटेन की हैं, and it is having a rugged mountain barrier of the world. ये पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा बैरियर बन के आया because it is having highest peak. इसमें माउंट एवरेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है. देन कंचनजंगा इंडियन हाईएस्ट पीक है क्योंकि इंडिया में है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इन हिमालयन माउंटेन, दैट इज माउंट एवरेस्ट लाइंग इन नेपाल, एंड विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, सो दैट इज कंचनजंगा लाइंग इन सिक्किम. ओके, देन its length from east to west that is 2400 kilometer. This is very important question, 1 mark question. What is the length of Himalayan mountain from east to west? That is 2400 kilometer. Its width varies from 400 kilometers. yes, ये जो इसकी width है, इसकी जो चौड़ाई है that is varying from 400 to 150. ये 400 जो width है that is in Kashmir and 150 that is in Arunachal Pradesh. So it is having yes, it is varying that in terms of width. ये 400 kilometer that is in Jammu Kashmir, and it is that is 150 in Arunachal Pradesh. So in that we can again discuss about the 3 parallel ranges. Parallel ranges में सबसे ऊपर वाली हिमाद्री जिसको हम इनर हिमालय भी बोलते हैं और ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं. उसके बाद आता है हिमाचल जिसको हम क्या बोलते हैं मिडिल हिमालय, एंड थर्ड वन इज दैट इज शिवालिक जिसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं. सो दीज आर द 3 पैरेलल रेंजेस दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल टुमारो बिकॉज टाइम इज ओवर. सो यू शुड नो अबाउट दिस हिमालयन माउंटेन्स. इसकी जो बाकी जो फीचर्स हैं दैट ऑल्सो यू शुड नो. ये जो बाकी जो पार्ट है दैट यू शुड कम विद अ फुल प्रिपरेशन. इसको पढ़ के आना so that you can understand in a easy way. Okay, तो अच्छे से पढ़ के आना कल so that you should feel relaxed in understanding that
part. Okay. So now you can leave as time is over. So now bye for the day. God bless you. Thank you. Thank you.